बहुत ही ज़्यादा। So, welcome everyone. It's truly a pleasure to be surrounded by so many inspiring women in the house. So, first of all, let's give a big round of applause for each one of us over here and for our dear panelists as well. Thank you so much. So, today's discussion is all about resilience, ambition, and breaking barriers in the digital era. How dreams turn into reality, how challenges become stepping stone, and how the right mindset can shape a powerful career. We have with us three incredible women out there and who have built their own paths in their own respective fields. इनकी कहानियाँ सिर्फ इंस्पायर नहीं करेंगी बल्कि आपको गाइड भी करेंगी कि कैसे करियर के चैलेंजेस को टैकल करें और अपने स्किल्स के साथ आगे बढ़ें। और सबसे ज़रूरी बात, कैसे हम अपनी जर्नी से सोसाइटी और कम्युनिटी, इस वर्डप्रेस इकोसिस्टम को कैसे गिव बैक कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू देयर स्टोरीज एंड समझते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है इस टेक इंडस्ट्री में। हम आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बट आज हम ये सुनना चाहेंगे जो शायद हमें सोशल मीडिया या गूगल पे नहीं देखने को मिलेगा। जो वो आपका पहला कदम, वो पहला टर्निंग पॉइंट जिसने आपकी जर्नी को डिफाइन किया हो। पारुल जी, लेट्स स्टार्ट विथ यू। आपके सफ़र का वो पहला मोड़ क्या था जब आपको लगा कि हाँ, ये मेरे लिए एक सही रास्ता है और मैं इसी पे चलना चाहूँगी? So, I'm sorry, I've just been sitting quietly there, so probably I'll just take some time to get normal. But I think वो पहला mode and that one kick that happened in my career was when I was in engineering. I was doing my electronics and communication degree at in Delhi, and I was really into it. And then suddenly this election, the youth club election came in, and I was selected as the creative head there. And that 1 year that I was part of that post, right, I was heading that particular post, I just felt that this is what I want to do. This is where my heart is. It belongs to creativity, communication, branding, talking to people, listening to their stories, understanding their problem and probably giving a solution. And I think from there the journey started. With engineering it became easy. With technology it just was so easy because I actually tell it to every brand marketer and every tech guy, please listen to stories. It will give you a lot of insights. So I think that is it from my side. That was when I realized it. हम चाहेंगे कि मनीषा जी, हम सब जानते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर की एक यूनिक जर्नी होती है। आप फ्रीलांसिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। आपका मगर जो स्टार्टअप माइंडसेट होता है, मतलब वो कब डेवलप हुआ और आपको उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हाँ, मतलब अब आई वांट टू डू स्टार्टअप? Okay, so basically I belongs to a business class family already. So there was a time when I was studying and all, everything is going. So I thought कि कुछ करना है, right? And होता है ना कि सब किसी के लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, right? Everyone, either the boy or the girl. So some incident happened with me, और उसके बाद ये लगा कि अभी तक कुछ भी नहीं किया, let's do something big. And I also belongs to CS or IT background, you can say. So कुछ यूनिक या कुछ कुछ अलग करना था। एक होता ना जुनून होता है या एक थोड़ा सा कि सबसे हटके करना है। So that motivated me that, and that time कुछ इंटरनेट का इतना ज़्यादा क्रेज भी नहीं था, and I got to know about the e-commerce. So थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज किया and I explored very much, रिसर्च किया उसके बारे में, and then I thought कि मार्केट में आप उस अकॉर्डिंगली काम करो जो शायद आपके टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट? So I thought about that there are a lot of businesses which are working traditionally, so why not to go on the internet? Why not to go on the e-commerce? So that's how I started with the e-commerce, and
As of now, I'm working with multiple ventures out globally and helping develop their businesses. So that's how I like the mindset came from the family itself that this is it and you should go with that flow. So that's for music. बहुत ही सही बात कही आपने कि कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें एक तरीके से मोटिवेट कर देते हैं कि अब अब हमें करना है कुछ, अब हमें करके दिखाना है. एंड आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी आप तीनों से इंस्पिरेशन लेंगे और जो भी कुछ नया करना चाहता है आई होप कि यहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ लेके जाए. सो हम चाहेंगे कि अर्शी आप अपनी कहानी सबसे शेयर करें. आपने सिर्फ 19 की उम्र में बिजनेस एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में स्टेप किया, विच इज़ नॉट अ इजी टास्क. वो एक डिसीजन लेना भी बहुत ही इट्स अ डेयरिंग स्टेप. तो लेकिन आपके लिए मतलब ये डिसीजन लेना कितना चैलेंजिंग था? बहुत से चैलेंजेस आए होंगे और आपने उसे कैसे फेस किया? So, पूजा, you are doing engineering, everybody is from engineering background. इंडिया में क्या होता है ना, जब हम स्पेशली मैथ्स लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस, मैथ्स या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. So I also wanted to become an engineer and मुझे भोपाल में रहना नहीं था because being young, I just want to go out, freedom चाहिए, मम्मी पापा के साथ वो freedom नहीं मिलती है. बट कई बार क्या होता है ना लाइफ में, हमेशा आप सोचते नहीं हो, कुछ प्लान्स आपके लिए मुझे लगता है ऊपर वाले ने लिखे होते हैं. मैंने 19 ईयर्स में बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मुझे वो करना था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था. आई गॉट सेलेक्टेड फॉर BIT वेल्लोर फॉर इंजीनियरिंग एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे फादर हैज़ द सीरियस हेल्थ इश्यूज. 1 साल अब बन विद हिम, मैंने सोचा कि I'll go next year एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी डेथ हो गई. तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं भोपाल से बाहर जा सकूँ. तो मेरे फादर का अब तो नहीं है, हैज़ अ स्मॉल बिजनेस एट मानसरोवर कॉम्प्लेक्स. सो आई लिटरली वांटेड टू हैंडल बिकॉज जब पापा थे तो मैं जो पेपर वर्क्स होते थे या फिर जहाँ भी उनको सपोर्ट लगता था, आई यूज्ड टू हेल्प हिम आउट. आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, तो हमारे में थोड़ा सा वो सोसाइटल प्रेशर की पापा की डेथ होगी, लड़की को भेजेंगे तो लोग सोचेंगे कि इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इसको भेज रहे हैं काम करने के लिए. एंड ऑल्सो जिस बिजनेस डोमेन में थे वहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती थी. इट्स ऑल मेल डोमिनेट सोसाइटी और इन्वायरमेंट वैसा नहीं था. सो व्हेन दे सेड कि नहीं, यू कैन नॉट हैंडल इट, आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी. एंड आइडिया भी ऐसे आया दैट आई वेंट टू लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन भोपाल. आई वाज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं. भोपाल में वैसे बहुत स्कॉलरशिप्स मिलती है बट हमको नहीं मिलती है. सो आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज नाउ माय को-फाउंडर. तो ही बस पैसे तो आपको अरेंज करने हैं बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो 60-70,000 फी स्ट्रक्चर हुआ करता था इन कॉलेजेस का. तो अब इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, सो आई वाज जस्ट सर्चिंग की व्हाट टू डू. कुछ स्टार्ट करना है, कुछ करना है, खुद का बिजनेस भी करना है, बट आई ऑल्सो बैडली वांट टू कंप्लीट माय इंजीनियरिंग. So he told me that you can apply through TFW scheme, which is tuition fee waiver. जितने भी ICT approved colleges होते हैं उनमें 5% seats रहती हैं, जहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हो तो आपको ये मिलती है. और you won't imagine, till today also there are thousands of students जिनको ये information नहीं होती. In the form of videos we provide information, we counsel and पता ही नहीं होता. जैसे मैं अभी कल ही अपने चाचू से डिस्कशन कर रही थी तो वो कह रहे थे कि मेरे नोन में एक बच्चा है, उसका 12th में 99 परसेंटाइल आया है. उसको MP गवर्नमेंट ने एक्टिवा गाड़ी गिफ्ट की है, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बिकॉज उसके फादर अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मैंने उनसे बोला आप उसको मेरे पास लेकर आना, वो बिना उसके भी मेधावी छात्र योजना है, वो अपनी पढ़ाई कर सकता है. सो दैट वाज द आइडिया थ्रू विच आई स्टार्टेड कि जैसे मुझे नहीं पता अबाउट द स्कीम, देयर लाइक ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द जर्नी, इट्स बिन totally with ups and downs, but currently we are catering almost 60 lakh students monthly. हमारे videos देखते हैं, और not only in Madhya Pradesh, pan India, right? We have a platform with the name of Student Khabri, we have Neat Vertical, we have MBA with Arshi. So I think the best power what I feel like comes after COVID, when people are aware that you have this digital access. So that was the turning point for me and for my company. But yeah, it was not a decision. It was like option नहीं था तो बस यही करना पड़ेगा. Yeah. Okay. तो
आज के डिजिटल एरा में महिलाओं के लिए कई नए रास्ते खुल रहे हैं। टेक हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या मार्केटिंग जैसे नीश हो। According to your experience, what are some opportunities for women in today's digital world? And how do you see women being more active in these fields? मैं इस सभी मतलब आप सभी की राय लेना चाहूँगी इस सवाल पे कि आप लोगों की क्या राय है कि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ 2019 आई थिंक मैं 10,000 रुपये भी नहीं कमा रही थी इंडिविजुअली एंड इट वाज अ ह्यूज प्रेशर कि आप ऑलमोस्ट 7-8 साल से बिजनेस कर रहे हो। व्हाट यू डूइंग, आप हमारे घर की सबसे ब्राइटेस्ट किड हो, यू कुड हैव डन इनक्रेडिबल थिंग्स, आप कहीं जॉब कर रहे होते IT कंपनी में, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एंड देन कोविड हिट, we were into this video platform, we just started video platform because we were into content creation, this Google वाला सर्च इंजन वाली चीज़, पर उसमें क्या था, you need a lot of funds when it comes to SEO. We even tried that, but as a bootstrapped company, सिर्फ पैसे लगाना is a difficult task for anybody. You also want return to survive. So कोविड से पहले we started this video platform and everything got changed. सब कुछ बदल गया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं शॉर्ट टाइम भी देखती हूँ, मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखती हूँ, मैं कभी सोचती हूँ कि आई थिंक इनकी एज में हम कुछ सोचते ही नहीं थे कि हम ये भी कर सकते हैं। बट यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग डिजिटल मीडिया, आप किसी भी रिमोट लोकेशन पे बैठ के कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम Calcutta, we have students coming from Maharashtra, from Karnataka, from Odisha. There's not even a single destination where say students didn't get directly to us. We don't reach out to them; they come to us. So that is the basic era जहाँ पे हम रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको अगर किसी ने कैपिटलाइज कर लिया, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है आपको पैसा चाहिए। मुझे लगता है अभी आप यूजिंग सोशल मीडिया बिना पैसे के भी पैसा बना सकते हो। मनीषा मैम, आपका क्या कहना है इस पे? I totally agreed with Arshi what she said कि basically हमारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। पहली चीज कि if we want ना, अगर मुझे करना है तो शायद we'll find the way, correct? अगर मुझे करना है तो we have lot of options, right? As she said कि social media platform है and आज की डेट में social media पर ऐसा कुछ नहीं है जो available नहीं है। We are not looking for it. Many of the people I see, I find that they are not looking for it. They are not serious for doing anything, right? So basically, availability तो है, but if you are hunger enough, if you are जिद्दी, तो शायद वो चीजें possible हैं. Even whosoever the person is, अगर वो homemaker है, अगर वो college going student है, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो they can look up to multiple of platforms are there apart from social media as well. आप सर्च तो करो, there is a platform YouTube, there is a lot of options over there, but हम there are two kinds of people, the one who uses internet for their time pass, they are scrolling reels nowadays, but other one are there who are using that internet to make the money. So this was also my click in my life that what I am doing. I had as I said earlier, I belongs to a traditional business. So that was my click कि available तो है, हम use करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, right? So that is the thing everyone can do. So there is this concept of very interesting concept that only humans follow, and the concept is failure. ये कॉन्सेप्ट किसी और स्पीशीज के पास नहीं है, क्योंकि और स्पीशीज जो होते हैं ना वो लर्निंग पे फोकस करते हैं। आपने आई डोंट नो कैट्स तो सबने देखे होंगे, कैट फैमिली में जो लायन या टाइगर होते हैं उनका भी एक तरीका होता है कि दे ट्राई 100 times टू गेट देयर फूड, दे वांट टू किल अ पर्टिकुलर एनिमल, बट उसमें से सिर्फ एक बार ही वो सक्सेसफुल होते हैं। उनका सक्सेस रेशियो इज 1%, बट वो तो आई डोंट थिंक सो दे उदास होकर के साइड में बैठ रहे कि मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। दैट कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट इन एनी अदर स्पीशीज, दैट्स ओनली विद ह्यूमंस। सो आई थिंक ये हमारा सोसाइटल कॉन्वर्जेशन है, ये रियलिटी, ये नेचर, ये नेचुरल नहीं है, इट्स द कंडीशनिंग। स्कूल की कंडीशनिंग है, पेरेंट्स की कंडीशनिंग है, फ्रेंड्स की कंडीशनिंग है, अराउंड सराउंडिंग की कंडीशनिंग है,
कि you get to the conversation of failure, focus on it, get affected by it, and then do not try it further. That's not something that naturally that exists naturally. So don't be very myopic, I guess. That's very important. Look at the results, try to figure out how to get there. Like, I'm really amazed by the story that she just spoke about herself, and keep trying, I think, is what made her what she is today. And all of us have that sort of zeal inside. It's just not that you figured out yet. You're still trying. You're all here because you're trying to figure out. And kudos to you all because you're trying to figure it out right now. Meeting people, networking with people, talking to people. So one of our friends, she just talked about SDLC, right? That's what is software development life cycle. I would say that we should also focus on skill development life cycle. That's very important. That means that you've not focused on failure. That means that you're trying to figure out what skills are suitable for you, what's your core competency. You learn, you retry, you come back, and you get up, and then again, you figure it out. So that's very important. I think keep trying is what the motto is. मुझे यकीन है कि यहाँ पे बैठे बहुत से लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे, तो मैं बता दूं कि हम लास्ट में एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे आप लोगों के लिए. आपके मन में जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं. तब तक के लिए विल डिस्कस आगे. तो पारुल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से है कि मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. फिर भी कई प्रोफेशनल्स के लिए इन दोनों के बीच के गैप को समझना मुश्किल होता है. आपको क्या लगता है कि इस गैप को ब्रिज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? I think communication. I work with tech team very closely. Like, I sit next to them most of the time. If I do not talk to my team on a regular basis, I make sure I talk to the tech guys regularly. Because it's very important to not separate marketing from tech. I'll speak about marketing majorly because that's what my core competency is. And tech became the enabler to make sure that what I'm doing is going in the right direction. So मैं हमेशा अपनी टीम को ये कहती हूँ कि टेक काम करता है, मार्केटिंग काम दिखाता है. Otherwise there is no point. अगर वो सिंक में नहीं है तो it won't sell outside. So it's very important that tech and marketing, tech and product, marketing and product, they do not work in silos. They talk to each other. They either understand each other's language or develop their own internal language to communicate. आपके अपने keywords figure out कर लो, आपके अपने jargons figure out कर लो. But it needs to be there. Communication needs to be quick, clear, and on a regular basis. There is an incident that I remember. We were trying to figure out a lead distribution platform for our company, and the person who was leading the tech, we used for a month before he writing the first line of the code. For a month, every morning 11 to 1, we used to sit and discuss about the product. He said that the kind of market insight that he could gauge, and the kind of product that what he had in mind before the discussion started with me, and what he developed is completely different. So tech guys should never ever, plan anything unless and until the market insights are not with them, and it's only going to come with sales, it's only going to come with marketing, it's only going to come with research. So that's very important. So I think, again, I'll stick to the communication kind. So, जो नए प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपना स्किल सेट डेवलप करना चाहिए कि वो और अच्छे से प्रोग्रेस कर सके इस फील्ड में? I think SDLC is I'm going to stick to that. Interesting it is. So I think keep the focus. I think the AI session we just saw, right? It's very insightful that when she was talking about if you are skilled enough with the newer conversation. बट फिर भी मैं एक चीज़ को फोकस करूँगी कि मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है बहुत. आई जस्ट टेक अनदर 2 minutes. इट्स जस्ट दैट कि आजकल के बच्चों को ईमेल लिखना नहीं आ रहा है. They're not able. When I was working with Bank Bazaar, the kind of emails that we used to write, they were so quick and proficient and professional that we were called
to kind of make sure that you write the right kind of emails. But आजकल के बच्चों को emails लिखना नहीं आ रहा है. I'm sorry, but that skill is needed. Whether ChatGPT exists or not, because that's your thought process, how you think. Your artificial तो जो है सो है, natural intelligence is going away somewhere. So please, skills development on both the side is very important. आपको tools तो सीखने हैं, but उसके हिसाब से उसको किस जगह पे implement करना है. मेल तो लिखना है, लेकिन उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस आपका है. वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप 1-2 मेल्स खुद से डेली ना लिखो. प्लीज डू नॉट डिपेंड मच ऑन इट. कीप ब्रशिंग योर एक्चुअल स्किल्स एज वेल. थैंक यू सो मच मैम. मनीषा जी, लाइक फ्रीलांसिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि बल्कि एक पूरा फुल फ्लेजेड करियर ऑप्शन बन गया है. तो लेकिन हर कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. लाइक आपके हिसाब से एक फ्रीलांसर या सोलोप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स क्या होनी चाहिए? अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो चाहता है कि वो एक सोलोप्रेन्योर बने या फिर एक फ्रीलांसर बने, तो उनके लिए क्या ज़रूरी स्किल्स होना चाहिए उनमें? So basically what I understand is कि जो thought process है ना, first we need to change that. The thought process to come forward कि actually what I spoke earlier about that outcome. Someone was lastly having a session about outcomes. So actually what we want, पहले तो मुझे उस पर focus करना पड़ेगा कि what I need, what I want, actually what is my goal. You should be the goal oriented. And apart from that, अगर आपको entrepreneurship या solopreneur आप बनना चाहते हैं, तो basically उस थॉट प्रोसेस के साथ, उस टाइम के साथ, उस टूल के साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा. राइट? व्हाट आई डू इज कि आई ऑलवेज सर्च फॉर मल्टीपल ऑफ कोर्सेज going online, and I used to upgrade myself to learn every day. तो पहली तो स्किल आपकी लर्निंग की होनी चाहिए कि आपको लर्न करना है. फर्स्ट यू लर्न, देन यू विल बी एबल टू अर्न. दिस इज अ फर्स्ट एक्चुअली स्किल दैट यू नीड टू हैव. Second thing is कि basically that goal orientation कि आप actually किस direction में जा रहे हैं. The direction should be actually the correct platform, right platform, and the environment, the right people around you. अगर ये आप एक this is a communication basically, या बोल सकते हैं कि ये networking skill है. What we are here for कि actually we are here for that actual networking skill कि हमारे वो connections अच्छे होंगे, so that we can find ourselves that we are in the right platform. अगर आपकी surrounding नहीं है, and then you cannot grow, right? You'll be stuck at one point, wherever you are. So I think that कि आपको अपनी surrounding को improve करना, that is also a skill. ये आपके अगर mind में नहीं होगा, आप अपना path decide नहीं कर सकते. Whatever it is, I'm not saying कि आप if someone is in graphic designing, if someone is in WordPress, तो आप सही हो या गलत हो, but आप किस surrounding में हो, and you will learn particular skills whatever it is needed. So I believe that कि skills comes with the time and whenever it is required, and you will have to learn. अर्शी, आपकी ऑडियंस लाखों में है और आपने खुद एक इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, तो मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक तो ये सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का कि इतनी बड़ी ब्रांड बन जाए और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग, लाइक 50 लाख भी टच कर पाना बहुत बड़ी बात है. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक सक्सेसफुल डिजिटल ब्रांड बनाना, लाइक इसका अलग सीक्रेट क्या है? वी वांट टू नो द सीक्रेट सॉस की रेसिपी. तो आपका मतलब क्या सीक्रेट है, क्या आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ कि लाइक हाउ कैन दे बिल्ड अ ब्रांड? सी जब हम डिजिटली ब्रांड्स बना रहे होते हैं, जब वी स्टार्टेड द फर्स्ट वर्टिकल विद यूट्यूब, मैं भी रिसेंटली एक और इवेंट में थी जहाँ पे आई मेट समबडी जिनके ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, एंड आई सेड दैट व्हाट आर योर लर्निंग. सो ही सिंपली सेड दैट मैंने 50,000 वीडियोस बनाई हैं, आउट ऑफ दोस 50,000 आई इवन डोंट नो कौन सी वीडियो चलेगी, कौन सी वीडियो नहीं चलेगी, व्हाट इज द एल्गोरिथम, राइट? कि उनमें से ये 500 वीडियो जो हैं दैट आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड. सो द फर्स्ट ईयर ऑफ जर्नी व्हेन
जब आप एज कंटेंट क्रिएटर डिजिटली अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो तो इनिशियल जो हमारी स्ट्रैटेजी थी दैट इज यू हैव टू प्रोड्यूस मास, राइट? कि लेट्स इन केस इफ somebody searching anything related to your domain, there should be a content on to it, right? इसकी वजह से आप क्या करोगे कि आप हर जगह अपनी प्रेजेंस बना पाओगे, राइट? अभी आप इनिशियली ये देखोगे कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, बिकम वो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट कम्स विद टाइम. सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज कि जितनी वीडियोस हम बना सकते हैं, हमारे डोमेन में जो ऑडियंस है वो क्या सोचती है, वो क्या जानना चाहती है, उन हर वर्टिकल पे आई नीड टू मेक अ वीडियो, आवर टीम नीड टू मेक अ वीडियो. देन जो सेकंड स्टेज होता है, नाउ जब ऑलरेडी आपकी ऑडियंस आना स्टार्ट हो गई, नाउ यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन क्वालिटी, कि आप उनको क्या दे रहे हो एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट? एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना तेजी से चीजें चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वाज टॉकिंग कि एआई जॉब्स ले रहा है. एक टाइम था जब लोग पेन पेपर यूज करते थे, फिर कंप्यूटर्स आ गए, जिन्होंने कंप्यूटर्स नहीं सीखे उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो गई, फिर इंटरनेट आ गया, राइट? तो इट्स जस्ट दैट कि आपको टाइम के साथ अडेप्ट करना है. तो हमने जब यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे स्विच किया तो वहाँ पे ऑडियंस और टोटल डिफरेंट है. अब यू कैन नॉट मार्केटाइज द वे यू वाज मार्केटाइजिंग ऑन यूट्यूब, राइट? आप उनको 1 मिनट में वहाँ पे कोई सर्च इंजन नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट समथिंग व्हिच कैन hook to them and they're scrolling and they should be like pause. So वहाँ पे you cannot become professional, you have to be like कि उनको क्या चाहिए. तो understanding your audience, what they want and creating content according to them, that what makes कि आपका ब्रांड ग्रो करेगा. बिकॉज इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, वी स्टार्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर आवर बिजनेस. आई थिंक आई वाज द फर्स्ट क्रिएटर्स. I'll give you a small example. We have a channel with the name of MBA with Archie. मैं इंडिया के टॉप 3-4 MBA creators में आती हूँ, pan India. You'll search any MBA colleges pan India, you will find my video on top, right? But from last year, I think 1.5 year, I see every single day new content creators are coming in, right? There's that because पर वही है कि कौन लंबा टिकेगा, जो ये देखेगा कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है, उसके साथ आपको चीज़ों में कैसे अपडेट करना है, चेंज करना है, ऑडियंस को क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है. सो दैट्स व्हाट आई फील लाइक. थैंक यू सो मच. मेरा एक और सवाल रहेगा आप लोगों से कि क्या कभी आप लोगों के मन में ऐसा मतलब ख्याल आया है या फिर आप लोगों के लाइफ में कभी ऐसा फेज आया है जब आपको सेल्फ डाउट हुआ हो कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मन में ये कई बार आता है कि मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, और मतलब उस फेज से कैसे ओवरकम करें. आई थिंक अभी हमारी कुछ जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, तो सबके मन में ये रहता है, अभी सब कॉलेज वाले हैं तो लाइक आगे क्या करना है, और ये रहता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. उस फेज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे लगता है दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट? और हर बच्चा चाहता है, जैसे कि एमबीए में चाहता है दैट आई वांट टू गेट इनटू आईआईएम अहमदाबाद, उसी तरह से इंजीनियरिंग में एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे, राइट? बिकॉज वहाँ का पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, एनीबडी कैन डू इट. मतलब आप सोचो कि मैं आपको बता दी कि 2019 में आई वाज नॉट इवन मेकिंग 10,000 रुपये a month to generating a revenue of crores is a different transition. But उसके लिए एक चीज़ लगती है, that is consistency. She asked कि क्या give up करने का आपका मन किया बहुत बार. आप सोचो हम 7 साल एक बिजनेस चला रहे हो, आपको सैलरीज देनी है, आप लोग हायर कर रहे हो, अब उनको भी ग्रोथ चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हो, they are switching, चीज़ें नहीं चल रही हैं. When you're going home, that's this constant pressure what you're doing. पर मुझे ऐसा लगता है दैट there's this book which is named as Start with Why. मैं अभी भी जब भी स्टूडेंट की वीडियोस में काउंसलिंग करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ दैट व्हाई यू डूइंग दिस, राइट? तो जब मुझे गिव अप करने का मन करता था तो मैं अपनी आँख बंद करती थी और मुझे सिर्फ अपनी मम्मी का चेहरा याद आता था. आई कैन नॉट गो टू हर एंड से दैट बिकॉज पापा के बाद उनकी बहुत सारी होप मुझसे थी और मैं उनको जाके कैसे बोलूँ दैट मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लाइक आई वांट टू क्विट. सिर्फ वो जो थॉट प्रोसेस है वो वाई से आता है, दैट आपको जॉब क्यों करनी है,
आपको बिजनेस क्यों करना है, आप इस डोमेन में क्यों काम कर रहे हो. कल क्या हुआ, आई थिंक there's this girl, she came to office. जैसे when it comes to Women's Day हम केक कट करते हैं, डेली जो नॉर्मल काम चल रहा होता है वो चलता है. तो एक लड़की आई इंटरव्यू के लिए, मैंने अपने लिंक्डइन पे भी डाला था दैट शी सेड मुझे जॉब करनी है. तो मैंने उससे पूछा, अभी मैंने रिसेंटली लास्ट एक सेमिनार में सीखा था, लर्निंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप टीम को रिटेन तब कर सकते हो जब आपके जो मोरल्स हैं, जो इमोशंस हैं वो कनेक्टेड हो. वरना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उन्हें सिखा रहे हो, वो जा रहे हैं. तो मैंने उससे नॉर्मल क्वेश्चंस की जगह बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन किए. पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, फैमिली में कौन कौन है, पापा कितना कमाते हैं. तो शी से मेरे पापा की मंथली सैलरी 6,000 रुपये है. अब आई वाज लाइक शॉक्ड, 6,000 रुपये में, अगर आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे वो सोचते होंगे 6,000 रुपये में क्या होता है. पूरी फैमिली चलाना, जहाँ पे उसका एक भाई है, 2 भाई हैं, एक बहन है, मम्मी है, पापा है, राइट. और जिनके यहाँ वो काम करते हैं उन्होंने घर दे रखा है तो रेंट नहीं लगता. तो उसने अपने पापा से कई बार बोला भी कि आप कहीं और देखो. तो दे सेड कि अगर मैं कहीं और देखूंगा तो वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा, यहाँ रेंट नहीं लगता है. मैंने उससे पूछा 6,000 रुपये में आप सर्वाइव कर लेते हो. तो शी सेड बहुत मुश्किल होता है बट स्टिल वी आर मैनेजिंग. एंड यही एक वजह है कि मुझे जॉब करनी है. तो उसके बाद आई थोड़ा कि मुझे अपनी टीम से बात करनी चाहिए. तो मैं मैंने सबको बुलाया, सबसे पूछा तुम क्यों जॉब कर रहे हो, तुम क्यों जॉब कर रहे हो, व्हाई यू वांट टू डू जॉब, क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, क्या करना चाहते हो. मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उनका वाई नहीं, वो सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं कि ठीक है हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, मेरी पर्सनल पॉकेट मनी है, हम कर रहे हैं. जिस दिन ये वाई ऐसा हुआ दैट आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, आई थिंक देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज. हम देखते हैं दैट फीमेल्स आर कमिंग, दे आर वर्किंग. मेरे ऑफिस में भी आर 90% फीमेल्स वर्किंग, बट स्टिल उनका वो जो वाई है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो बस इसलिए आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम लेट्स इन केस अगर आप किसी दिन उनको कुछ बोल दोगे, हो सकता है कल वो नहीं आए, बिकॉज दे डोंट हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली, राइट. सो आई पर्सनली फील है कि हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, जब मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है इट्स क्वाइट सिमिलर. मेरे साथ भी यही पैटर्न था. इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट वाई. So if you have a very strong why, कैसे भी phases आएंगे, you will keep on working. और अगर why strong नहीं होगा तो बस यही लगेगा कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें. And that is one of the reasons when I started, I think 40-50 startups थे. I started another platform for supporting entrepreneurs of Bhopal, जिसके लिए I got awarded by ex-chief minister of Madhya Pradesh. उनमें से I think मैं अभी अगर current situation की बात करूँ, 3-4-5 startups की जो हैं जो survive कर पाए, right? Because जब आप पैसे नहीं जनरेट कर पा रहे हो, जो चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है. एंड सक्सेस की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, आपको एक रास्ते पे चलना है. आपको नहीं पता, हो सकता है आप आज क्विट कर रहे हो, कल आपको सक्सेस मिल जाए. देयर इज ओनली दिस वन वे. आप भले जॉब करना चाहो, इररिस्पेक्टिव कि यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू बिकम a singer, a dancer, anything. It's just that you just need to keep on walking, and you will one day, you will definitely get success. Yeah. So the same question is with you, right? Okay. So as she said, she started after her father, right? So somewhere this story relates with me as well. I have my father, but we are apart from our father. So basically, जब studies चल रही थी, right? So I started, like जैसे मैंने बोला कि I wanted to do something. तो मैंने जब अपनी entrepreneur journey start करी, then I was not very much clear कि why I'm doing that. But उस start करने के बाद, again I'll come to the point that some incidents happens, ठीक है? So some incident happened and उसके बाद धीरे धीरे वो why में clarity मिली कि why actually I want to do that. Because उस business को start करने के बाद ही शायद the family problems happened and we got apart from our father. So एक responsibility आ गई कि actually I'm the elder one of my family, तो शायद मुझे ही करना है. बहुत बार मन हुआ कि नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है. Even as she said, I was also not making the money initials. होता है, कुछ भी आप start करते हो तो आप बहुत जल्दी उसको build नहीं कर सकते. That's not possible. Success is not only one day or in a night.
It takes your lot of efforts, lot of your hardships, and बहुत सारे challenges, बहुत सारे sacrifices, lot of things. और हर एक entrepreneur, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे entrepreneurs की journey देखी है, like you know live देखी है उनकी journey and बहुत सारी books पढ़ी है, तो like you know वो relate कर पाती हूँ कि शायद वो क्यों कर पाए, because again that why was very very clear कि actually उनको करना क्या है और पहुंचना कहाँ है लाइफ में. So similarly I got the responsibilities in my life, तो like you know आज भी लगता है कि कभी कभी नहीं हो रहा है, but that hope to never give up attitude होता है ना, वो होना आपके अंदर बहुत जरूरी है. I say to myself every day, let's try for one more day, let's try for one more day. एक दिन वो आ जाएगा, then it will happen what I am imagining and what I am manifesting. And the manifesting is very very much important कि आप manifest करो and it will happen, right? इसका भी प्रोसेस है, उसका भी एक जो प्रोसीजर होता है कि आपको कैसे manifestation करना है, उसकी भी एक्चुअली क्लासेस होती हैं. Again come to the point AI, ठीक है, सोशल मीडिया, वो आपको इसके लिए भी ट्रेन करते हैं कि how to do that, right? But that one more day kept me going. Thank you so much, ma'am. I think every day the self-doubt, the guilt and the greed also comes. क्योंकि I have a 6-year-old, उसको टाइम नहीं देने पाने पे भी बहुत गिल्ट होता है. But you just have to keep moving. There's no ifs and buts about it. I'll keep it very short that focusing on what your purpose is, figuring it out first, and then focusing on it, and then making sure कि आप उसमें consistent रहो is very important. I think उसके अलावा कुछ है ही नहीं. Consistency, discipline, ये encourage हो रहे हैं, motivate हो रहे हैं, सब कुछ नहीं. Motivation is nothing. Please get out of this conversation जहाँ पे बोले ना I will motivate you. 2 दिन motivated रहोगे, तीसरे दिन back to normal हो जाएगा. Please don't get into this jing-jang of motivation. If you are disciplined, you will get it. कोई मोटिवेट नहीं करेगा. 4 रील देख लोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं होने वाला उसका. आपने रेगुलरली अपनी स्किल्स पे काम किया है तो ही फायदा होगा. जस्ट बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल, आप अपनी चलती फिरती खुद की कंपनी हो, यू आर मैनेजिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. आई एम मैनेजिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पारुल श्रीवास्तव. ठीक है, दैट्स इट. व्हाट इज गेटिंग एज एन इनपुट विल कम एज एन आउटपुट. ठीक है, सो वही है, दैट इज द ओनली थिंग. फोकस ऑन दैट. आई थिंक दैट विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ. बस एक आखिरी सवाल कि जो भी महिला या फिर लड़की अपना करियर शुरू करने जा रही है, उसके लिए लाइक एक सेंटेंस में जैसे एक गोल्डन एडवाइस उनके लिए आप तीनों की तरफ से. Stop thinking too less of yourself. I think that's very important. Women, I'll just take 2 sentences here, not just one. कि आप ना most of the time we are conditioned to think less of ourselves, to take support, कि कोई मेरी मदद कर दे. ठीक है, रक्षाबंधन मना करके हमने अपने आप को वैसा ही कंडीशन कर दिया है. बट नो, प्लीज बी इंडिपेंडेंट. प्लीज हैव योर, आप कोई भी काम अगर शुरू से अंत तक कर सकते हो तो ही लो और कैपेबिलिटी बनाओ. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, यू नो, यू कीप सीकिंग सपोर्ट एंड इट विल नेवर कम टू यू. सो लेट्स जस्ट बी इंडिपेंडेंट. So, what my advice should be कि एक आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, a child that you should keep alive. मतलब कि there are a lot of people and I'm seeing over here mothers are sitting, right? So उनका भी कुछ ड्रीम होता है, उनको भी कुछ करने की इच्छा होती है कि हमें कुछ करना है या जो हमने नहीं किया वो हमें करना है. तो बेसिकली टाइम कभी खत्म नहीं होता. अभी हमारे पास समय है, राइट? इफ वी थिंक कि चला गया सब कुछ, ओवर, इट्स ओवर, बट नॉट, इट्स नॉट ओवर. यू कैन स्टार्ट टुडे इटसेल्फ. आप आज स्टार्ट कर सकते हो इफ यू थिंक अबाउट इट. तो आपको वो आपका जो अंदर का बच्चा है ना, द चाइल्ड, आपको वो जीवित रखना पड़ेगा. एंड अगर आपने वो जीवित कर लिया, एंड यू शुड कीप अलाइव एंड कीप फॉरवर्ड, लाइक मूव फॉरवर्ड, राइट? तो बेसिकली मेरी एडवाइस होगी कि बस उस बच्चे को अलाइव करो. आई थिंक यू नो 2 चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी. पहली चीज़, आई टोटली अग्री टू
about all that. You know, you need to be independent. But independent, first, financially independent is also something which is very important. When I talk to girls जो पैसे कमाती हैं, they go to their family, they even say that, you know, हमें लेके हमारी family का perspective जो है, before earning और after earning काफ़ी ज़्यादा changes हैं. और financially independent के साथ दूसरी जगह पे, you know, whether it's why not to ride a bike, why not you know, to drive a car, why not to ride a, तो हर चीज़ में इंडिपेंडेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है. और दूसरी एक और चीज़ क्या है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, दो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, बट स्टिल बचपन से जो नेटवर्क जो है ना, वो बहुत मैटर करता है. तो लड़कियों को बचपन से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, आई थिंक यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, एक माइंड में थॉट है कि अपना ग्रेजुएशन करना है, भले जॉब करेंगे बट फिर एक टाइम पे शादी तो होनी है, राइट. बहुत कम लड़कियों के दिमाग में ये होगा कि यार मुझे मतलब पढ़ाई करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आई हैव टू बी द ब्रेड एंड बटर ऑफ द फैमिली. सो जब ये थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना, दैट व्हेन यू विल बी लाइक अर्निंग, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, और ये थॉट प्रोसेस खत्म होगा कि यार चलो कुछ भी कर ले बट एक टाइम के बाद शादी तो होनी ही है, तो हमें ज़्यादा, तो मुझे लगता है यू नो चेंजेस देखने को मिलेंगे. और ये चेंजेस आप ही को करने पड़ेंगे, बिकॉज फैमिली में सिंस चाइल्डहुड वो है, यू नो, भले वो एक छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस हो, भले वो छोटी छोटी अपब्रिंगिंग हो, भले वो हम सोसाइटल छोटी छोटी चीज़ें देखें, वो चेंज हुई है पर इट्स स्टिल देयर. सो आई फील लाइक, यू नो, जब आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चला पाती हैं, यू नो, अभी भी, यू नो, मैं कई बार अपने को फाउंडर से कार चला रही होती, अरे वो देखो लड़की चला रही है, दैट्स व्हाई शी डिड लाइक दिस. पर उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बचपन से जो सुना है वो यही सुना है कि अच्छा यार लड़की को, यू नो, घर तो संभालना ही है, राइट, या लड़कियों को एक टाइम तो पराया धन है, जाना ही है, शादी तो होनी ही है. पर उनको कभी ये नहीं अपब्रिंगिंग दी गई कि यार तुम्हें बहुत अपने आप को स्किलफुल करना है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली, हम लोग को देखना है. तो वो अपने आप को फिर उस तरह से अपग्रेड करती. तो मुझे लगता है सिर्फ प्रॉब्लम ये है. तो मैंने सेम आंसर अपने को फाउंडर को भी दिया था कि हम इसलिए बोलते हैं कि अच्छा वो लड़कियां सही से नहीं चला पाती, बिकॉज ये बचपन से हमें, यू नो, यही सिखाया गया है कि अच्छा ये नहीं ये नहीं ये नहीं. तो मुझे लगता है, यू नो, पहले तो, यू नो, यू हैव टू चेंज दिस नॉर्म, एंड दूसरा बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड इन एवरी सिंगल टर्म. सो जब आप वो इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपने डिसीजंस ले पाओगे, आप ग्रो कर पाओगे, और आप जो चाहो वो कर पाओगे. या थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. तो मुझे पता है कि आप सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल होगा, तो थोड़ा सा टाइम क्रंच है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप हाई टी के दौरान पूछ सकते हैं मैम से, तभी से. एंड या थैंक यू सो मच टू आवर डियर पैनलिस्ट जिन्होंने अपना समय दिया हमें. और यू नो एक चीज़ है कि मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि लीडरशिप इजंट जस्ट अबाउट ए टाइटल, और आप इसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि इट्स मोर अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड टेकिंग एन एक्शन. तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू आवर ऑडियंस कि उनने इतने पेशेंटली इस डिस्कशन को सुना. थैंक यू सो मच एवरीवन.